अटेंड नहीं कर पाएगा, तो है ना। Yes. सो फर्स्ट विल डू इंडक्टिव इफेक्ट, जल्दी से खत्म करेंगे, और फिर कुछ रेजोनेंस या रेजोनेटिंग इफेक्ट भी हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे, है ना। So till now we know due to electronegativity difference some charge will induced on respective atom. तो जो induced charge का जो effect है it is known as, let's say, inductive effect, है ना। Now following factors affect magnitude of inductive effect. Following factors affect magnitude of inductive effect. That's the first factor is electronegativity. Electronegativity of directly bonded atom. Electronegativity of directly bonded atom. I hope इसमें समझाने की जरूरत भी नहीं है मुझे, है ना। Such that if you see order of minus I effect, order of, let's say, minus I effect, if substituent is fluorine, it is chlorine, bromine, and it is iodine. इन चारों में से किसका minus I effect will be higher? Fluorine. Fluorine more than chlorine, more than bromine, and more than iodine. Similarly, if let's say we have NO2 and let's say if we have COH, which has more minus I effect? Do you think यहाँ भी NO2 का रहने वाला है? Obviously. Yes, sir. NO2 का रहेगा. Obviously, nitrogen is much more electronegative than carbon, and वहां भी साथ में 2 ऑक्सीजन अटैच है, और वहां भी साथ में let's say 2 ऑक्सीजन अटैच है in COH also. Similarly, let's say third one is, if it is, suppose ये हम लोग लिख सकते हैं, if it is NH3 plus and let's say it is NH2, which one has more minus I effect? NH3 plus. NH3 plus. Once nitrogen having positive charge, do you think this, due to positive charge, it will be more electron deficient and it has tendency to pull the bonded electrons? Yes, sir. Okay. Now the fourth factor, apart from let's say this NH3 plus NH2, its fourth factor is, इसी में fourth example, एक मेरे पास ऐसा है और let's say एक मेरे पास कुछ इस टाइप का है. Which one has more minus I effect? Second वाला. Second. ध्यान से देखना, फर्स्ट वाला ही रहेगा. क्यों रहना चाहिए? Do you think this carbon is sp hybridized and this carbon is sp2 hybridized? Yes, sir. Yes, sir. Yes. कुछ ऐसा पढ़ा है बेटा केमिकल बॉन्डिंग में, या पहले भी, as percentage s character in hybridization increases, electronegativity of element increases? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So you can say sp carbon will be more electronegative than sp2 carbon. Clear? ऐसा ही next example, and you can say you have to remember this example, ये बार बार repeat भी होगा. It is NH3 plus and it is Me3 plus. एक मेरे पास NH3 plus है और एक मेरे पास NMe3 plus है. Which one has more minus I effect?
NH, इसे आश का क्यों होना चाहिए बेटा NH3 का? हाँ सर, फर्स्ट वाले का मुझे भी लगा। अच्छा, क्यों होना चाहिए वैसे फर्स्ट वाले का? थोड़ा कोई आइडिया कोई बच्चे को कि पहले वाले का क्यों होना चाहिए ज्यादा NH3+ का? नहीं बताएगा बच्चा कोई? ठीक है चलो, एनीवे आंसर उल्टा है। क्यों उल्टा है वो समझना है ना। NMe3+ has more minus I effect than NH3+. Now to explain this, you can just try to understand this is hydrogen, hydrogen and hydrogen here, and having positive charge on this carbon. Suppose if this angle is found to be theta, and if it is, you know, NMe, it is Me and Me and positive charge, and this angle is found to be, let's say, phi. So एक एंगल मेरे पास let's say थीटा है, एक एंगल let's say मेरे पास फाई है। Yes, Sashka, तो बेटा can you suggest me इन दोनों एंगल्स में से कौन सा एंगल will be higher, थीटा और फाई? थीटा। थीटा बड़ा होने वाला कि फाई बड़ा होने वाला है? शायद फाई होना चाहिए बेटा। दिस here you can just try to imagine हाइड्रोजन का साइज इज वेरी स्मॉल, सो यू कैन कंपेयर। ये हाइड्रोजन है। Here as per methyl is concerned, it is much more bulkier in comparison to that of hydrogen. Yes. So here we have to have repulsion, है ना? Yes, sir. So confirmly phi will be more than that of theta. More important thing is, can we say here theta will be confirmly more than 90 degree? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. अच्छा, और can we say more than phi, and phi can be more than equal to 109 degree, 28 minute? Yes, sir. मिनिमम जिस ब्रांच से ये जुड़ा हुआ है उसमें कम से कम एक कार्बन तो होगा ही होगा ना, नहीं? सपोज मेरे पास Yes, यहाँ sir. मेन चेन है जहां से जुड़ा हुआ है ना, तो कम से कम वहां एक कार्बन तो होगा कि नहीं होगा? तो अगर एक कार्बन हुआ तो ये परफेक्टली टेट्राहेड्रन हो जाता, और एक से अगर ज्यादा कार्बन हुआ तो डू यू थिंक दिस बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, है ना? Yes, sir. Now suppose if bond angle is precisely 90 degree, इसका परसेंटेज P कैरेक्टर या परसेंटेज S कैरेक्टर, डू यू थिंक या परसेंटेज S कैरेक्टर 0% हो जाता, और यहाँ जो परसेंटेज S कैरेक्टर है it will be 25% at least? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So out of these two nitrogen, which nitrogen can be more electronegative? NMe3 होगा। NMe3+ has Yes, more sir. percentage of S character, more electronegative. तो ऐसा करके उसे रिलेट करके याद भी रख लोगे इसको। NH3+ has less minus I effect than NMe3+. More important thing is, if we have this type of example here, it is NH3+, it is NH2Me, NH2Me plus, it is NH and Me2 plus, and it is NMe3+. So ये ऑर्डर हो जाता है बेटा माइनस आई इफेक्ट का। याद रख पाओगे ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. So as methyl increases, bond angle will be more and more. So higher will be the bond angle, we have more percentage of S character. सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं 90 डिग्री पे 0% एस कैरेक्टर क्यों हुआ? बेटा 90 डिग्री बॉन्ड एंगल तो P और PX, PY एंड PZ ऑर्बिटल बनाते हैं ना, तो P और P हो जाएगा वो, तो है ना? यस सर।
है ना, बॉन्ड एंगल 109.5 होगा प्रिसाइजली, तो प्रिसाइजली sp3 हो जाएगा। Yes, sir. Okay. Such that on the basis of this, if we have to compare order of stability, let's say if we have to compare the order of stability, suppose if we have CH2F and CO minus, if we have CH2Cl and CO minus, आपकी आवाज नहीं आ रही। बट अभी आया वैसे, है ना, अभी आया। यस अच्छा, here fluorine, chlorine, bromine as well as iodine, all they have minus I effect. Due to minus I effect, they will try to stabilize this anion or destabilize this anion. माइनस आई इफेक्ट की वजह से इस एनायन को ये स्टेबलाइज करेंगे कि डिस्टेबलाइज करेंगे? स्टेबलाइज Stabilize. करेंगे। एंड डू यू नो fluorine has maximum minus I effect, then let's say it is chlorine, and then let's say it is bromine, and then let's say it is iodine, है ना? So fluorine का minus I effect is more than that of chlorine का minus I effect. Chlorine का minus I effect is more than that of bromine, and bromine का minus I effect is more than that of iodine, है ना? So सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा इसमें? First one. First one. So you can say this can stabilize more in comparison to this, more in comparison to this, as fluorine has more minus I effect than chlorine. Is it clear? Yes. ऐसा मैं एक और एग्जांपल लिख लेते हैं यार स्टेबिलिटी का। इससे ऊपर वाला पार्ट लिखे हुआ है वो structures Yes, and sir. axials. Yes, sir. Now in the order of stability only, I can say, let's say it is A part and let's say it is B part here. In the order of stability, suppose if we have COOH and CH2 and CH2 plus, and if we have CH3, CH2 and CH2 plus. Out of these two cation, which cation is found to be more stable? COH having plus I or minus I effect? COH having plus I or minus I effect? माइनस इसका Minus Minus I. अच्छा, CH3 कोई भी जो एल्काइल ग्रुप है उसका प्लस आई इफेक्ट है ना? यही डिफरेंस है ना दोनों में भाई, मोर ऑफ लेस ये वाला स्ट्रक्चर तो दोनों में ही कॉमन है। ऐसे जो कॉमन स्ट्रक्चर है उसको कंपेयर करने का कुछ जरूरत नहीं है ना? सो डू थिंक एक कैटायन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और एक कैटायन में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो व्हिच कैटायन इज फाउंड टू बी मोर स्टेबल? फर्स्ट और सेकंड? First. नहीं बेटा, सेकंड वाला है ना? Second. You know, due to minus I effect, substituent can destabilize carbocation, and due to plus I effect, substituent can stabilize carbocation. Yes or no? सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? बेटा ये माइनस आई इफेक्ट है, ये प्लस आई इफेक्ट है। एक वो है जो इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाला है टुवर्ड्स कार्बोकेटायन, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो डू यू थिंक उसका पॉजिटिव चार्ज का कुछ पार्ट इन कार्बन और हाइड्रोजन पे भी आ जाएगा? यस सर। है ना? और दूसरे वाले, फर्स्ट वाले केस में जो COH है जो इलेक्ट्रॉन को पुल कर सकता है, उसका कुछ चार्ज इन कार्बन पे भी चला जाएगा? यस सर। लिखे हुआ है ऐसा?
Yes. Okay. थोड़ा ये फर्स्ट फैक्टर समझ लिया तुम लोगों ने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला? Now if we see second factor, second is inductive effect. Inductive effect is scalar and it is additive. Inductive effect is scalar and it is additive. For example, order of plus I effect. If you see example of order of plus I effect. In order of plus I effect, suppose if we have hydrogen here, if we have CH3, it is hydrogen, hydrogen and hydrogen. And if we have hydrogen, hydrogen and it is hydrogen and hydrogen and hydrogen. तो एक मेरे पास सिर्फ हाइड्रोजन है, एक मेरे पास सिर्फ मिथाइल है और एक लेट से मेरे पास इथाइल है. ये भी कार्बन की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पुश करने वाला है, ये भी कार्बन के डायरेक्शन में और ये भी कार्बन की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पुश करने वाला है. Here in the case of hydrogen, do you think hydrogen has tendency to push the electron towards carbon? So obviously Yes, hydrogen having plus I effect. Hai na? Same in the second case also, hydrogen acquired delta positive charge, delta positive and delta positive. Due to this carbon acquired delta negative charge. Yes, sir. Yes, sir. Once this carbon acquired delta negative charge, do you think it can further push this bonded electron away from its and towards this carbon? Yes, sir. So can we say more or less ये जो substituent है मेरे पास methyl as a substituent, it having plus I or minus I effect? Plus I. Plus I effect. Plus I, इसका भी plus I है. और यहाँ ये बता सकते हो क्या बेटा, हाइड्रोजन and methyl, which one has more plus I effect? Methyl. 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 मतलब obviously there is no direct measure here कि हाइड्रोजन का लेट्स से अगर 1 न्यूटन है तो CH3 का 3 न्यूटन होगा ड्यू टू 3 हाइड्रोजन, बट ये पक्का ज्यादा होगा, ये कंफर्म है ना. तो यू कैन से वहां पॉजिटिव चार्ज 3 हाइड्रोजन पे डिस्पर्स होने वाला है ना. सेम in this case हाइड्रोजन पे प्लस आएगा, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज and plus charge here. So overall can we say this ethyl Plus. obviously इस कार्बन पे पक्का नेगेटिव चार्ज आ जाता and this will further repel this bonded electron towards this carbon, so it also has plus I effect. Do you think ethyl can have further more plus I effect than methyl? Yes, sir. Yes, sir. Yes. और ज्यादा हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बेसिकली, है ना. So you can say all alkyl groups having plus I effect. All alkyl groups having plus I effect, and as number of carbon, as number of carbon increases in alkyl group, as number of carbon increases in alkyl group, their plus I effect will further increase. ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Okay.
ये लिखो, फिर हम लोग और भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. यू विल कंपेयर स्टेबिलिटी आल्सो. Done, sir. Sir, 1 minute. Sir, 1. Done, sir. Yes, sir. Done. Done. Yes, sir. अच्छा, इसी में if we see, let's say, order of minus I effect, order of, you know, minus I effect. Suppose if I have CF3 and if we have fluorine, which one should have more minus I effect? Fluorine. CF3. CF3. बेटा जैसा CH3 का प्लस आई इफेक्ट हाइड्रोजन से ज्यादा हो सकता है, तो ऐसा CF3 का माइनस आई इफेक्ट एक फ्लोरीन से ज्यादा नहीं हो सकता. Yes, sir. Yes, sir. है ना. इवन उसमें कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर मैं बोलूं कि NO2 का जो माइनस आई इफेक्ट है वो फ्लोरीन से भी ज्यादा होता है ना. Yes, sir. मतलब नाइट्रोजन और साथ साथ में और 2 ऑक्सीजन भी तो हैं जो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देते होंगे, है ना. हाँ sir. It has more minus I effect than that of fluorine, है ना. या जैसा मैं एक पूरा ऑर्डर ही लिखा देता हूं, ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट लेट्स से, है ना, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, जिसमें ऑब्वियसली वो क्यूमुलेटिव है ना. ऑर्डर ऑफ, यू नो, इंडक्टिव इफेक्ट. So यहाँ more or less, if you see order of minus I effect, here NF3 plus can have one of the maximum minus I effect. Then you can say it is NS3 plus can have more than that of CF3. CF3 can have more than that of NO2. NO2 have more than that of C triple bond N. And it has more minus I effect than, let's say, COH. COH has more minus I effect than fluorine, let's say chlorine, it is bromine, and it is iodine. So if you see complete sequence here, ये कुछ इस टाइप का आ सकता है. So it is 1, let's say 2, 3. जब उसमें समझना उतना मुश्किल भी नहीं है. यहाँ देखो sp कार्बन एंड sp नाइट्रोजन अटैच है, और यहाँ मेरे पास sp2 कार्बन एंड sp2 ऑक्सीजन ही अटैच है बस, है ना. sp नाइट्रोजन हैव फेयर एनफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, ऑन पॉलिंग स्केल. इसमें इस रिलेटेड कोई डाउट लग रहा है तुम लोगों को? No, sir. जैसा इफ यू सी, ये कहीं देखो ऐसा डेटा भी दिया हुआ है, तुम लोग चाहो तो ऐसा नोट में ऐसा डेटा भी लिख सकते हो. क्या एक नोट है सिंपल सा. नोट इज, यू नो,
पॉलिंग स्केल, है ना, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर या सिंबल जाई, है ना। एक मेरे पास यहाँ sp कार्बन मोर देन sp2 कार्बन मोर देन sp3 कार्बन, एंड इट जस्ट फॉर योर रेफरेंस sp कार्बन पॉलिंग स्केल पे 3.1 है, ये 2.6 है, और ये लेट्स से 2.3 है। Getting? Yes, sir. Yes, sir. ये लिखे हुआ है बेटा सामने बोर्ड पे जो भी है, Yes, एक sir. सेकंड जल्दी से लिख डालो। यस सर। इफ यू सी इसके बेस पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, लेट्स से फर्स्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में बी it is CH3 CH2 and CH2 plus, and another may be CH3 CH2 and CH2 plus. let's say एक मेरे पास इथाइल कार्बोकेटायन है और एक मेरे पास प्रोपाइल कार्बोकेटायन है। एक मेरे पास इथाइल कार्बोकेटायन है और एक मेरे पास प्रोपाइल कार्बोकेटायन है। दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होने वाला है? सेकंड वाला। सेकंड वाला, Second. इट हैज मोर प्लस आई इफेक्ट, है ना, एंड इट हैज लेस प्लस आई इफेक्ट। Second is, suppose if we have, let's say, Cl, Cl and Cl and COO minus, it is CH, Cl and Cl, and let's say it is CO minus, and it is CH2 Cl and it is COO minus. As per chlorine is concerned, it has minus I effect, chlorine having minus I effect, ये chlorine having minus I effect, and this chlorine having minus I effect, है ना। अच्छा, ये नहीं करना कि देखो वेक्टर वेक्टर बना के कैंसिल्ड आउट कर दो क्लोरीन का, है ना। सर स्केलर लिखा है। हाँ, वो स्केलर है ना। अच्छा, इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? इसमें तो ये था, है ना। सेकंड में फर्स्ट वाला। obviously 3 chlorine can stabilize carbanion more in comparison to 2 chlorine, and 2 chlorine can stabilize more anion in comparison to, let's say, 1 chlorine, है ना। Getting? थोड़े लिखे हुआ है ऐसा? एक Yes, सेकंड sir. लिख लिया है अब जा? Yes, सर sir. 2 मिनट। ओके, चलो मैं थर्ड फैक्टर यहीं लिख देता हूं। थर्ड फैक्टर, एज डिस्टेंस ऑफ reference charge, as distance of reference charge या reference charge
and substituent increases, the effect of I, inductive effect of substituent decreases as distance of reference charge and substituent increases, the effect of inductive effect decreases. So here you can say, जैसे NCERT की जो language है, it is nearly after 4 carbon in a chain. Nearly after 4 carbon in a chain, inductive effect, completely diminishes. Nearly after 4 carbon in a chain, inductive effect completely diminishes. है ना, इंडक्टिव इफेक्ट पूरी तरह से खत्म ही हो जाता है बेटा. So you can say it is distance dependent. For example, if you see the order of stability, let's say it's A part related to stability order. Suppose if we have, COO minus and chlorine is attached here. It is CO minus, chlorine is attached here, and it is CO minus and chlorine is attached here. इन तीनों में से बेटा मोस्ट स्टेबल कौन सा होने वाला है? पहला वाला, फर्स्ट वाला. मतलब किधर से फर्स्ट, लेफ्ट से फर्स्ट कि राइट से फर्स्ट? राइट से. राइट से फर्स्ट. राइट से फर्स्ट होना चाहिए बेटा. जैसा क्लोरीन हैविंग माइनस आई इफेक्ट, यहाँ क्लोरीन हैविंग माइनस आई इफेक्ट एंड क्लोरीन हैविंग माइनस आई इफेक्ट. अच्छा, जितना ये रेफरेंस चार्ज के ज्यादा पास में आता जाता, डू यू थिंक उतना ये एनायन ज्यादा स्टेबल होता जाता? अच्छा, यस सर. अगर उतना ये एनायन ज्यादा स्टेबल होता जाएगा, सो स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा आ जाता है ना. जैसे से क्लोरीन का डिस्टेंस बढ़ता जाता CO माइनस से, द इफेक्ट ऑफ इट्स इंडक्टिव इफेक्ट कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस. सर बट लास्ट वाले में जो कार्बन है उसमें पॉजिटिव चार्ज का लोकलाइजेशन हो जाएगा ना? बेटा देखो, कार्बन चेन तो सब में इक्वल ही है ना. नंबर ऑफ कार्बन इफ यू सी, बेटा हर एक में इक्वली कार्बन है ना. यस सर. और इफ यू सी भी कार्बन का शायद प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता होगा ना. पूरा कार्बन चेन ही तो है बेटा, सब जगह है ना. तो जो भी मैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट डालता होगा, शायद उसका इफेक्ट सिग्निफिकेंट होता होगा ना. तो कार्बन उन सबका तो मुझे इंडक्टिव इफेक्ट देखने की धीरे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना. ओके सर. सेम इफ वी हैव, लेट्स से अनदर एग्जांपल हियर. सपोज इफ इट इज ऑक्सीजन and having positive charge on this carbon, and if we have oxygen and let's say having positive charge on this carbon, out of these two, which one is more stable? सेकंड वन. Second. किधर से सेकंड, लेफ्ट से कि राइट से? राइट से. फर्स्ट वन. लेफ्ट से सेकंड. Left से second. थोड़ा ध्यान से देखो बेटा. Oxygen having minus I effect,
ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट वो कैटायन को डिस्टेबलाइज करेगा। अगर वो कैटायन को डिस्टेबलाइज करेगा तो जितना पास में है उतना ज्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा, एंड thus फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकंड वन। फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकंड वन। सर एक बार वापस बता सकते हैं? बेटा आसान सा ही है कि भाई अगर मेरे पास ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ऑक्सीजन अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इट हैज माइनस आई इफेक्ट, तो डू यू थिंक वो जो कैटायन है जो पॉजिटिव चार्ज है उसको डिस्टेबलाइज करेगा वो? और जितना Yes. ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा पास में होगा उतना ज्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा उसको। क्लियर? यस सर। सर आप ये वाला पार्ट एक और बार एक्सप्लेन करोगे प्लीज? अबे इतना आसान चीज पढ़ा रहा हूँ नालायक। मतलब है क्या, अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कैटायन को चार्ज को और इंटेंसिफाई करेगा, और जितना वो पास में होगा उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर देगा। चार्ज इंटेंसिफाई हुआ तो वो अनस्टेबल बन जाएगा ना। नोट अब क्लियर हो गया? हाँ। चल बहुत अच्छा बच्चा। और बड़ा ऐसे सब लोग डाउट पूछते रहो है ना, तो तुम लोग ऑर्गेनिक में एक बार डाउट पूछ के समझ लिया तो शायद बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको ना। Yes, अश्विन? sir. यस सर। यस सर। ये 3 फैक्टर लिख के हो गया पूरा? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अच्छा, फोर्थ फैक्टर, heavier isotope, heavier isotope of hydrogen, deuterium. Heavier isotope of hydrogen, deuterium D, is more electropositive. Heavier isotope of hydrogen, deuterium, is more electropositive and is found to be more electropositive and having more plus I effect. Is found to be more electropositive and having more plus I effect, such that if you see order of stability, बच्चे ये सब बच्चे अच्छे से बताना, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, एक है मेरे पास CD3+ और एक है मेरे पास CH3+। सेम एक है CD3CO- और एक है CH3CO-। फर्स्ट वाले में व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? सर सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। लेफ्ट से फर्स्ट आता है। हाँ सर। हाँ सर। लेफ्ट से फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है बेटा। अगर ड्यूटेरियम का ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा तो वो कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, है ना। अच्छा, दूसरे वाले केस में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? राइट H वाला। राइट वाला। H1 हाँ सेकंड। H वाला, क्योंकि ड्यूटेरियम हैज मोर Destabilize प्लस आई इफेक्ट देन हाइड्रोजन, वो एनायन को ज्यादा डिस्टेबलाइज कर सकता है। गेटिंग? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस। चलो अब इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? इंडक्टिव इफेक्ट में कुछ डाउट है तुम लोगों को?
सर सेकंड वाले की फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? सेकंड वाला हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ये वाला हाँ सर। बेटा, उसमें देखो नेगेटिव चार्ज है। वहां नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो उसको डिस्टेबलाइज ही करेगा, है ना। अगर उसको डिस्टेबलाइज करेगा तो वापस वो पूछ लो। यू नो CD3 अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। ड्यूटेरियम हैज मोर प्लस आई इफेक्ट देन हाइड्रोजन। क्लियर? यस सर। ये लिख के हो गया है इतना? यस सर। Yes. सो ये मोर ऑफ लेस हम लोगों ने एक बार इंडक्टिव इफेक्ट समझ लिया है। अच्छा, एक बार एक एक करके बाकी सारे इफेक्ट भी पढ़ लेते हैं, फिर सबको एक साथ क्लब करके समराइज करेंगे, ठीक है। बिफोर वी स्टार्ट रेजोनेटिंग इफेक्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एज रेजोनेंस। ये कुछ रेजोनेंस तुम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा है। आई होप कुछ मैंने तुम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री में भी पढ़ाया था, है ना। Yes. फिर से थोड़ा सा Yes, देख sir. लेते हैं। तो the same definition for few molecules. विनीत बेटा, प्रीवियस स्लाइड ये वाला था, जल्दी से लिख डालो उसको। हो गया लिख के विनीत? Okay, so resonance, so you can say for few molecules or ion, for few molecule or ions, you know, more than one, for few molecules or ions more than one Lewis structures are required. For few molecule or ions, more than one Lewis structures are required to explain. More than one Lewis structures are required to explain its, you know, all properties. More than one Lewis structures are required to explain its all properties. These different structures are known as, you know, resonating structures or, you know, canonical form. जैसे मैं कुछ तो बोलना भूल गया, या कुछ बच्चों को ना मैंने शायद किसी एक ग्रुप में कुछ पजल भेजा हुआ है ना। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. और किसी Yes, बच्चे ने sir. अभी तक मुझे उसका आंसर दिए ही नहीं है। Sir, सर मैंने सॉल्व कर लिया है, भेज दूंगा। अच्छा, ठीक है। So for few molecule or ions, more than one Lewis structures are required to explain its all properties. These different structures are known as resonating structure or canonical form. They are hypothetical. They are hypothetical, do not exist. They are hypothetical and do not exist. The actual structure of molecule या ion, actual structure ही लिख लेते हैं। Actual structure is resonance hybrid structure. Actual structure is a resonance hybrid structure, and you know, it can show
it can show properties of all the resonating structures. Actual structure is resonance hybrid structure, and it can show properties of all the resonating structures. हाँ, ये समझ में आता है? Yes, sir. It can show properties of all the resonating structures. ऐसा लिखे हुआ है। एक मिनट। और ये सब ऐसा पता भी था ना तुम लोगों को नहीं पहले? हाँ सर। हाँ सर, पता था। सो रेजोनेंस ठीक ठाक चलेगा यार। तुम लोग को जो 28 फेब को जो टेस्ट है उसका सिलेबस में तुम लोग को भेजा है ना? यस सर। हाँ सर। तो उसमें जितना रेजोनेंस तुम लोग का पढ़ के हो जाएगा उतना आएगा, है ना? ओके सर। रेजोनेंस में भी शायद जब तक कंप्लीट ना हो पाए या कंप्लीट हो जाए, है ना? ये है बड़ा ठीक ठाक सा बड़ा है। इसमें हम लोगों को एरोमेटिसिटी भी पढ़ना है, रेजोनेंस एनर्जी भी पढ़ना है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी पढ़ना है, प्लस आर माइनस आर इफेक्ट भी पढ़ना है ना? यस सर। यस सर। लिखे हो गया इतना? यस सर। मैं एक पिक्चर तुम लोग के साथ पहले भी मैंने शेयर किया है। तुम लोग के जो केमिकल बॉन्डिंग का मॉड्यूल है उसमें भी है वो पिक्चर टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना? तो बेटा कुछ ऐसा स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एक राइनासोरस बना होता था और एक ये कुछ ऐसा देखो था, कुछ ऐसा पहले भी। यस सर। Yes, sir. हाँ, ये केमिकल बॉन्डिंग के मॉड्यूल में भी है कि भाई सर है। हाँ, सो एक भाई इफ यू हैव टू इमेजिन या किसी फ्रेंड को बताना है कि राइनासोरस कैसा दिखता है, तो कुछ ना कुछ उसमें कुछ यूनिकॉर्न के जैसा है और कुछ ड्रैगन के जैसा है। बट यूनिकॉर्न एंड ड्रैगन सिर्फ ये कहानियों वाला किस्सा है ना? दे आर जस्ट इमेजिनरी क्रिएचर्स। राइनासोरस ही है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है। But rhinoceros can show properties, some features of unicorn and some feature of dragon, है ना? तो हम लोग बोल सकते हैं यूनिकॉर्न एंड ड्रैगन कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जैसे हैं और राइनासोरस ही वो स्ट्रक्चर है जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। क्लियर? यस सर। यस सर। सो यार किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है और किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होता है वो पता कैसे करेंगे यार? सर डबल बॉन्ड से कुछ रिलेशन होगा सर। उसमें डबल बॉन्ड कुछ होना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो नहीं चलेगा? मतलब सर मल्टीपल बॉन्ड्स होने चाहिए। हाँ सर। पाई सिग्मा पाई, एक बच्चे ने मुझे ये बोला है। चलो एक काम करते हैं, पॉसिबिलिटीज ऑफ रेजोनेंस कहाँ कहाँ हो सकता है ना? सो पॉसिबिलिटीज ऑफ resonance. Possibilities of resonance. पहले हम लोग सिंपल चीज समझते हैं फिर उसको समराइज करेंगे। सो ए पार्ट में बी, let's say if any molecule have in general double bond, it is single bond and let's say double bond. If any molecule has double bond, single bond and double bond, it has resonance. If any molecule has double bond, single bond and double bond, it can have a resonance. For example,
it may be CH2 and CH and CH and double bond CH2 as one of the simple example of this combination, double bond, single bond, double bond. In this double bond, single bond and double bond combination, here, let's say, suppose if this carbon, you can say it is Cu1, this carbon is C2, this carbon is C3, and this carbon is, let's say, C4. Do you think every carbon atom is found to be sp2 hybridized here? Yes, sir. ये वाला जो कार्बन है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है. इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, इट विल बी प्लेनर और नॉन प्लेनर. अगर हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, so this structure will be planar or non-planar? If every carbon is found to be trigonal planar, overall हाँ, sir. structure is also found to be planar, है ना? Yes, So sir. if I just try to draw its structure, it will be, let's say, ये representation का meaning समझ में आता है बेटा तुम लोगों को कि ये Yes. bond plane से बाहर जा नहीं. रहा है और शायद नहीं, ये हाँ. bond plane के अंदर जा रहा है, ऐसा है ना? Yes, sir. And this may be another carbon atom going inside the surface of board, and this carbon is obviously coming outward. Yes. This hydrogen further coming outward, this hydrogen going inside the surface of board, and this hydrogen further coming out. ये समझ में आ रहा है ये स्ट्रक्चर CH2, डबल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2. अभी तक जो भी स्ट्रक्चर मैंने ये ड्रॉ किया है, कौन से प्लेन में है टेक्निकली? कौन से प्लेन में है ये सब मिला के? डू यू थिंक XY प्लेन? वैसा ही है? Yes, sir. मतलब ये पेपर के प्लेन से बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes. ये अभी तक मैंने XY प्लेन में ड्रॉ किया है. यार इस कार्बन के पास एक ऑर्बिटल होगा जो पाई बॉन्ड बना रहा है. कौन सा ऑर्बिटल होगा ये? PZ. Do you think this is PZ. PZ ऑर्बिटल? हाँ सर, XY तो यूज करना. ये Z एक्सिस के अलोंग है ना, और ये है भी ना Z एक्सिस के अलोंग. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So, these orbitals are found to be parallel. It is along Z axis. जो भी सिचुएशन अभी है, do you think यहाँ sideways overlapping है और यहाँ sideways overlapping है? Same as this. यही है. We have double bond between C1 and C2 and double bond between C2 and C3. तो डबल बॉन्ड पॉसिबल है if parallel orbitals are present on adjacent atoms. डबल बॉन्ड तभी बनेगा ना जब पैरेलल ऑर्बिटल्स हैं on adjacent atoms. Yes, sir. Parallel p or p orbital you can say, huh? Yes, sir. So idea is कि यार ये डबल बॉन्ड do you think इन दो कार्बन के बीच में भी हो सकता था फिर? Yes, sir. हाँ, sir. ये भी तो adjacent atoms हैं and these orbitals are found to be parallel. But अगर मैं वैलेंस शेल या अपना VVT देखें, वैलेंस बॉन्ड थियरी, तो कार्बन एट ए टाइम 5 बॉन्ड नहीं बना सकता ना किसी भी केस में. हाँ सर. तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना. जब भी हम लोग कुछ ऐसे हाइपोथेटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, हम लोग कुछ इस पाई बॉन्ड को मैं इधर शिफ्ट करा सकता हूं, तो इस पाई बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा, है ना. अगर वो पाई बॉन्ड मैंने उधर शिफ्ट कराया तो लेट्स से उस पाई बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा. ये जो डायरेक्शन है, इट इज फ्लो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. ये जो डायरेक्शन है,
इट इज फ्लो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, है ना। तो अगर उस बॉन्ड को मैं हेट्रोलिटिकली ब्रेक कर दूं, सो डू यू थिंक इस कार्बन पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता? Here now it is double bond and CH, and let's say it is CH2 and negative charge on this carbon. Another resonating structure may be it is CH2 minus CH and double bond CH, and let's say it is CH2 plus here. So do you think ऐसे मेरे पास 3 different resonating structure possible है? Do you think ऐसे मेरे पास 3 different resonating structures possible हैं? And their hybrid structure is found to be CH2 and CH and CH and CH2, and everywhere we should have double bond character. So this is nothing but resonance hybrid structure, and these 3 are resonating structures. These 3 are resonating structure, और ये जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. यहां भी साइमल्टेनियसली पाई बॉन्ड बनने वाला है और यहां भी साइमल्टेनियसली पाई बॉन्ड बनने वाला है ना. तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका. चलो एक बार इसको ड्रॉ करो, किसी बच्चे को कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछो मुझसे भी, है ना. मेरा आवाज तुम लोग तक आ रहा है बेटा? Yes, sir. Okay. So point is, whenever more than 2 pi orbitals are parallel on adjacent atom, we should have simultaneous sideways overlapping. Yes, बड़ा लिख रहे हो ऐसा कि नहीं? Sir, Absolutely. 2 minutes, sir. Yes, sir. Sir, 2 minutes more. अच्छा बेटा, मैंने पहले भी समझाया है. You can also use multiple color pens to draw the structures in organic chemistry. जितना तुम लोग को नोट्स देखने में अपना अच्छा लगेगा उतना ही बार बार पढ़ोगे उसको, है ना. हाँ, तो sir. खूब एकदम सुंदर नोट्स बनाओ अपने, है ना. ऐसा ऐसा लिखे हुआ है तुम लोगों का. सर 1 मिनट. Sir, 1 minute more.
लिखा है सर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसमें से आउट ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड हाइब्रिड स्ट्रक्चर, which structure is found to be more stable? Hybrid. हाइब्रिड। क्यों होना? यस बेटा, क्यों होना चाहिए हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल? Can we say in resonating structures, if you see, do you think a pi bond localized है between these two carbon, and this pi Yes, electron sir. is localized between these two carbon, है ना? Here we have delocalization of pi electron. Yes or no? So you can say there is delocalization. There is delocalization of pi electron through resonance, and thus hybrid structure is found to be more stable than resonating structures. अच्छा, यही जो स्टेबिलिटी का डिफरेंस है उसका क्या नाम होता है? Resonating energy. यस, वही रेजोनेंस एनर्जी भी होता है ना, कि कितना हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना? क्लियर? हाँ, ऐसा लिखा है तुम लोगों ने? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके। जैसा ये था डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जिस कंपाउंड का नाम ही 1,3 ब्यूटाडाइन हो सकता था। Another example of such type may be, let's say it is carbon here. ये structures obviously तुम लोग को जाना पहचाना लगेगा। Here it is carbon. This may be, let's say, another carbon atom, and this may be another carbon atom here, and hydrogen. This is a carbon here, and this is carbon, and this dotted line, this is further, this bond further coming outward and further coming outward. This is going inside the surface and inside the surface of bond. So it is hydrogen, it is another hydrogen atom, it is another hydrogen and hydrogen atom here. So in the case of benzene, do you think overall structure of benzene is found to be planar? And every carbon has one p orbital, or you can say it consists one pi orbital, and these pi orbitals are also found to be parallel. Again, I am repeating, if pi orbitals are found to be parallel on adjacent atom, we have to have simultaneous sideways overlapping of these pi orbitals. It is connected with this and eventually connected with this. Simultaneously, this is connecting with this bond and this bond connecting with this bond. यहाँ connected है, यहाँ connected है, और eventually यहाँ connected है ना? Clear? Yes. So यहाँ जो molecule है, it is found to be C6H6. As per resonating structure of benzene is concerned, we know one of the resonating structure of benzene is like this. It's another structure of benzene.
Here you can just try to imagine this pi bond may shift here. ये pi bond यहाँ shift होता and this may be another pi bond here. So double bond and double bond बन जाता. The hybrid structure of benzene, everywhere we have double bond character, or simply hybrid structure may be drawn like this. So here's a ring. This ring represent every carbon is found to be doubly bonded here. Ring का जो meaning है, it is every carbon is found to be doubly bonded there. Here, these two are resonating structure of benzene, and it is resonance hybrid structure of benzene. Clear? Yes, sir. लिखे हो गया ऐसा? Yes, sir. last part देख सकते हैं. So you can say similar possibility of resonance. Similar possibility of resonance. ये कुछ ऐसा हो सकता है. Instead of double bond, can we say we have triple bond? यहाँ भी तो इवेंचुअली मेरे पास पाई ऑर्बिटल्स पैरेलल हैं कि नहीं है? Yes, sir. यहाँ भी ये इस टाइप का बॉन्ड शिफ्टिंग पॉसिबल है ना? Yes. Similarly, if it is CH2 and it is CH and it is C triple bond N, double bond can shift here और ये बॉन्ड इधर डायरेक्शन में ब्रेक हो जाता है ना? Same if we have, let's say, double bond and CH, even if it is CHO, we have double bond, single bond and double bond, है ना? Clear? The point is, we can have triple bond, single bond, double bond. We can have double bond, single bond, triple bond, and many other possibilities here, है ना? So ultimately, we required pi orbitals. वो double bond भी हो सकता है, वो triple bond भी हो सकता है. भाई क्लियर है ऐसा? Yes, sir. ओके चलो इसी के बेस पे इतना लिख के हो गया तुम लोगों का ये? Sir, Yes. 2 minutes, sir. 1 minute, sir. यस बेटा आप लिख लिया? ओके
जैसा इसी में इफ वी सी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जैसा फर्स्ट में अगर मेरे पास कंपाउंड ऐसा था बेंजीन, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे थे बेंजीन के? 2 बन रहे थे ना, एक ये कंपाउंड था और ऑब्वियसली मैंने डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दिया था तो एक ये कंपाउंड था, ठीक है। सेम सपोज सेकंड कंपाउंड इज नेफ्थालीन, नेफ्थालीन के वी हैव हाउ मेनी डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? नेफ्थालीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे ऐसे? 4 नहीं, 4 नहीं बनेंगे बेटा। यस केविन तुम्हारा सही है। तो जिस बच्चे का ये नेफ्थालीन का आंसर आ जाएगा वो मुझे इसका आंसर भी बताएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या है? फिनंथ्रीन है। फिनंथ्रीन। सर तो एंथ्रासीन क्या था? एंथ्रासीन सीधा सीधा वाला है ना, अगर मैं रिंग एकदम ही सीधा रख देता आगे, है ना, तो ये जैसे बैंड है ना, समझा? हाँ सर। अच्छा चलो, इस वाले केस में एक बार मैं ऐसा पुट कर सकता हूं, ये एक स्ट्रक्चर है नेफ्थालीन के लिए, एक स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा हो सकता है। I can draw this structure as this, and I can draw this structure, as this. ये तीनों स्ट्रक्चर सेम है कि डिफरेंट है? देखो कुछ ऐसा डिफरेंस समझ में कर सकते हो। लेट्स से ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेंजीन की पोजीशन, उसको ए इमेजिन कर लो और इसको मैं अगर बी इमेजिन कर लूं, तो डू थिंक हर एक बेंजीन रिंग या तो ए के जैसा हो सकता है या बी के जैसा हो सकता है या इसमें कुछ ना हो? जैसा डू थिंक ये वाला रिंग मेरे पास ए के जैसा है, ये वाला रिंग मेरे पास बी के जैसा है, ये वाला रिंग मेरे पास बी के जैसा है और ये वाला रिंग मेरे पास ए के जैसा है। हाँ भाई, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. चलो अब ऐसा जल्दी से बताना, फिनंथ्रीन के हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल? फिनंथ्रीन मुझे ना 4 सर। कितना आ रहा है? 4। हाँ शायद उसके 4 स्ट्रक्चर्स आते हैं ना, तुम लोग ड्रॉ करके भी देख सकते हो। ये एक स्ट्रक्चर है एंड सेम एज दिस, और स्ट्रक्चर्स इसके ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। यहां स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेंगे एंड सिमिलरली यहां कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ हो जाएंगे। ऐसे 4 देखो कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स आप बन सकते हैं इसके, वो ड्रॉ करके देख लेते हैं। एक में डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, मुझे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड पुट करना है उसमें, है ना। एक में यहां बॉन्ड एंड यहां बॉन्ड, ठीक है। एक में मैं जैसे कुछ तो मैं कॉपी इसी को कर लूं कि भाई
सिर्फ इसमें ही कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं? 3। 3 अगर मैं और फिर उसमें 2। अगर मैं ऊपर वाले को फिक्स रखूं, है ना, जैसा अगर मैं इसको फिक्स कर दूं अभी तक, है ना, इसको फिक्स ही रखा है, तो मैं नफ्तालीन के ही 3 बन जा रहे थे कि नहीं बन रहे थे? Yes, sir. हाँ सर। अच्छा, तो मेरे पास देखो नफ्तालीन के लिए और कौन सा बचा हुआ है स्ट्रक्चर है यहाँ? मेरे पास एक बार डबल बॉन्ड देखो यहाँ आ सकता है ना, ये और ये 3 तो नफ्तालीन के कोरस्पॉन्डिंग ही बन गए कि नहीं? यस बेटा, ऐसे नफ्तालीन के कोरस्पॉन्डिंग बनेगा कि नहीं ये वाला स्ट्रक्चर? ये Yes. 3। चलो एक और हटा लेते हैं यहाँ, जहां मैं उसकी पोजीशंस को चेंज कर देता हूं थर्ड वाले रिंग के लिए। तो थर्ड वाले रिंग के अभी तक मैंने बॉन्ड्स एकदम फिक्स ही रखे हैं, वो 2 बॉन्ड्स, है ना। अभी तक मेरे पास कहीं भी डबल बॉन्ड कभी भी यहां नहीं बनाया ना मैंने? नहीं सर। अच्छा, वहां तो होगा पक्का पक्का, है ना, हर एक जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, डू थिंक ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, है ना। यस और नो? Yes, sir. अच्छा, इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर नहीं है इसका, है ना। सो टोटल 4 है, और मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज हम लोग चाहते तो इसको फिर से ऐसा देख सकते थे। डू थिंक ये वाला जो स्ट्रक्चर है मेरे पास वो बी टाइप का है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है मेरे पास वो ए टाइप का है, और वो अगर टेढ़ा देखेंगे तो ए टाइप का बन जाएगा। चलो इसको ए बी को हम हटा भी सकते हैं। मतलब ऐसे तीन स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं इसमें, है ना। क्लियर? Yes, sir. चलो मैं एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा, वो नेक्स्ट कल मुझे बताऊंगे उसका आंसर, ठीक है। सर मुझे नैप्थेलीन का उतना क्लियर नहीं हुआ स्ट्रक्चर्स। अरे हर जगह मुझे डबल बॉन्ड बनाना है बेटा, बस। और डबल बॉन्ड के पोजीशन मुझे चेक कर करके देखना है कि कहाँ कहाँ मैं बना सकता हूँ। सर बट जो फर्स्ट और नहीं? सेकंड है वो सेम ही लग रहा है। क्या बात कर रहे हैं? देखो उसमें एक में ए टाइप का बेंजीन रिंग है और एक में बी टाइप का बेंजीन रिंग है। या अगर और समझना हो तो मैं ऐसा बता सकता हूँ, इस वाले केस में ये बॉन्ड डबल बॉन्ड है और इस वाले केस में ये सिंगल बॉन्ड है। हाँ, डिफरेंट नहीं हुआ बेटा। हम लोग ये बोल सकते हैं दोनों का स्टेबिलिटी इक्वल है, बट दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सर तो मिरर इमेज सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट रहेगा ना, मिरर इमेज सेम रह सकता है भाई। जैसा ये दोनों बेंजीन के स्ट्रक्चर सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफरेंट है, ऑल्दो एक दूसरे के मिरर इमेज है। यस सर। चलो अभी मुझे जो होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन है, तुम लोग चाहो तो स्पेस भी छोड़ सकते हो उसके लिए, है ना। 4th यू कैन ड्रॉ 4, इसके लिए शायद तुम लोग खुद से ड्रॉ कर लोगे यार, है ना। ये कंपाउंड है एंथ्रासीन एंड वन मोर 5th जो तुम लोग और खुद से करने की कोशिश करोगे, ये स्ट्रक्चर है। क्लियर? ये ड्रॉ करके बताऊंगे बाद में, है ना। Yes, sir. सर उसका sir. स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं हुआ था। किसका? तो वो एंथ्रासीन का। एंथ्रासीन तो ऊपर ड्रॉ है, फ्रेंथ्रीन का। यस सर। सर फिफ्थ वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या है?
यार उसका नाम पायरीन है, TYRENE। मैं स्ट्रक्चर जानबूझ के लिखना नहीं चाहता था, अदरवाइज गूगल बड़ा आसान हो जाता उसका, है ना। तो लोग सीधे गूगल पे ही टाइप कर सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पायरीन, है ना। करना नहीं, ठीक है। नहीं सर। सर हमने तो सोचा भी नहीं था अभी तक। क्या? हमने सोचा भी नहीं। हाँ सर। शैतान बच्चे सोच लेते हैं ऐसा, है ना। चलो ये फ्रेंथरिंग का ड्रॉ करके हो गया। हाँ सर। यस सर। ठीक है। यस सर। कल के क्लास में मुझे बताओगे एक सेकंड सर। कितने स्ट्रक्चर्स, एंथ्रासीन के कितने स्ट्रक्चर बने और ये पायरीन के कितने स्ट्रक्चर्स बने ऐसे। So till now we have seen just one possibility. Either we can have double bond, single bond, double bond. We can have triple bond, single bond, triple bond, double bond, single bond, triple bond. इस टाइप के combinations possible है ना? Clear? Second part, let's say B part. B is we can have, let's say, double bond, single bond, and क्या ले लें, vacant orbital. So we can have double bond, single bond, and vacant orbital. For example, this carbocation may be CH and it is CH2 plus. क्या है इस कार्बोकेटाइन का नाम? इस कार्बोकेटाइन का नाम क्या होने वाला है? As per this carbocation is concerned, it is allyl. Allyl कार्बोकेटाइन है ना, है कि नहीं है allyl? यस ये सर सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। यस सर। इसमें ये वाला कार्बन sp2 है, ये वाला कार्बन भी sp2 है, और सारे के सारे कार्बन ही sp2 है इसमें, है ना। So again, do you think this structure is found to be planar? यस सर। तो इसमें भी ये जो पाई बॉन्ड वाले ऑर्बिटल हैं और वो जो वैकेंट p ऑर्बिटल है, डू यू थिंक इट विल बी पैरेलल बॉन्ड? यस सर। अच्छा, अगर वो पैरेलल है तो ये पाई बॉन्ड देखो मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं इस टाइप का आसानी से, एंड इट्स अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बी, ये बन जाता CH2 प्लस एंड ये बन जाता CH डबल बॉन्ड CH2। and its hybrid structure should be, it is CH2, it is CH, and it is CH2. Everywhere we should have double bond character. In its hybrid structure, what should be the bond order of this bond? but hybrid में उसका bond order क्या होने वाला है? Do you think precisely 1.5? Yes, sir. As जितना उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, एग्जैक्टली उतना ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है उसमें, है ना। जितना उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, डू यू थिंक एग्जैक्टली उतना ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है उसमें? हाँ सर, अभी शॉर्टकट का लॉजिक समझा। यार अच्छा, वो जो सोच 1.5 कैसे आएगा, है ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। सेम सपोज इफ वी हैव, चलो इन सब के स्ट्रक्चर्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इफ इट इज CH2 and CH and let's say we have BH2, boron, do you think boron के पास भी we have 2p vacant orbital?
its octet is not completed. होता है कि नहीं ऐसा? बेटा बोरोन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, इट इज सब ऑक्टेट कंपाउंड. Yes. Yes, sir. Yes, So sir. again we have double bond, single bond, vacant orbital. ये थोड़ा ध्यान से बनाना, ड्रॉ करना. If we have CH2, it is CH. Now we have to put double bond between carbon and boron. Can you suggest me यहाँ कहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और कहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा? यहाँ तो बोरॉन पे नेगेटिव. बोरोन पे नेगेटिव आना चाहिए और जहां से इलेक्ट्रॉन टूट गया है वहां पॉजिटिव चार्ज आएगा. Positive. पॉजिटिव. अच्छा, you can understand net charge on both the resonating structure या all the resonating structure should be identical. हाँ sir. जैसे अगर पहला वाला इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो बाद वाला भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा. Yes sir. Yes, sir. And you know, in its hybrid, it is CH2, it is CH, and let's say if it is BH2 having double bond character, do you think finally it should have partial positive charge and partial negative charge? The direction of its dipole moment is from carbon to boron in actual hybrid structure. Yes, sir. Yes sir. Similarly, let's say if we have CH2 plus, if we have, let's say CH2 plus pi bond and pi bond here. This carbocation is also known as benzyl. This carbocation is also known as benzyl carbocation. Benzyl carbocation is resonance stabilized. This pi bond can shift here. And it's another resonating structure should be, let's say pi bond. And do you think ये बन जाता है यहाँ CH2 and this carbon should have positive charge? बेटा ऐसे आएगा नहीं, जहां से बॉन्ड टूट जाता था वहां पॉजिटिव चार्ज आएगा. Yes, sir. तो थोड़ा देखो, एक ख्याल रखना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो ऑल्टरनेट कार्बन पे ट्रेवल करने वाला है. देखो है ना, अब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता था. सो अब यहाँ ये आ जाता, यू नो, CH2 and double bond and positive charge on its para position. More structures can be possible. Let's say this pi bond can shift here and it should be, let's say CH2 and double bond and positive charge. Further, you know, this pi bond can shift here and it's another resonating structure should be, do you think it will be CH2 plus and double bond and double bond here? Yes sir. So total how many resonating structure is possible for benzyl carbocation? 4. 5 ना? 5. हाँ फर्स्ट वाले को. जो फर्स्ट 5 ड्रॉ किए है ना. हाँ सर. And its hybrid structure should be, it is, you know, CH2. Everywhere we have double bond character with partial positive charge on this carbon, on this carbon, this carbon, and this carbon, and overall this can be hybrid structure of benzyl carbocation. Is it clear? तो थोड़ा सा ये ख्याल रखना बेटा, ये है ना ऑल्टरनेट चलता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ना, ऑल्टरनेट कार्बन पे है कि नहीं है? हाँ सर. और सब Yes, sir. मिला के यहाँ +1 चार्ज है ना. तो ये जितने भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हैं वो सब मिला के +1 है.
अच्छा, कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, बेंजाइल कार्बोकेटायन और एलाइल कार्बोकेटायन? किसमें बेटर रेजोनेंस है? तो किसमें बेटर रेजोनेंस है, एलाइल कार्बोकेटायन और बेंजाइल कार्बोकेटायन? So benzyl. बेंजाइल से उसमें ज्यादा रेजोनेंस है नहीं? Yes, So you know, Yes, benzyl carbocation is more stable than allyl carbocation, as it is better stabilized. Benzyl carbocation is more stable than allyl carbocation as it is better stabilized. ये समझ के हुआ है ऐसा? yes Yes. sir, हो गया. yes, sir. Sir, 2 minutes, sir. लिख लो जल्दी से ऐसा. हाँ ऐसा लिखे हुआ है. Sir, 1 minute. Yes, sir. हाँ सर, हो गया. ओके. इसी सीरीज में लेट्स से वी हैव टू फाइंड आउट number of resonating structures. Number of resonating structures, let's say first one is, suppose if I have to draw, जैसे इसके लिए तो हम लोग ने अभी ड्रॉ किया है. Suppose if we have this as a carbocation, कितने थे बेटा इसके लिए? हाँ इसके कितने थे? 5. 5. तो अभी ड्रॉ किया है ऐसा बेंजाइल. हाँ सर. Yes, sir. चलो मुझे तुम इसके लिए बताओ यार कितना आएगा. सपोज इफ वी हैव लेट्स से CH2, या मैं यहां बना देता हूं सपोज CH2 प्लस. एक मिनट है ना. लेट्स से इफ वी हैव CH2 प्लस, how many different resonating structure are possible for this carbocation? तुम लोग ड्रॉ भी कर सकते हो, तुम लोग कोई शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, जो तुम्हारा मन करे यार, है ना. टोटल इस कंपाउंड के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं वो बताना है तुम लोग.
आशिका पाठक, नहीं बेटा तुम्हारा आंसर सही नहीं है। अमन अग्रवाल, तुम्हारा आंसर सही नहीं है। यस केविन, तुम्हारा आंसर सही था। मुझे और 4-5 बच्चों ने आंसर दिया था, एक बार मुझे चेक करने दो। अभी तक मुझे जितने भी आंसर मिले हैं बस उसमें केविन का आंसर सही है। नमन तुम्हारा गलत है, अमन तुम्हारा गलत है, वैष्णवी तुम्हारा गलत है, दोनों अमन का गलत है ना। अमन अग्रवाल एंड अमन आयुष सिंह, जैनी शाह, नहीं बेटा तुम लोगों का सही नहीं है। शुभम प्रजापति, तुमने ज्यादा काउंट कर दिया है बेटा, है ना। आदित्य बंसाली, नहीं बेटा तुम्हारा भी सही नहीं है। चलो मैं तुम लोग को 2 मेथड सिखाने की कोशिश करता हूं, दोनों से समझो। स्वमरूप, अबे नहीं, अच्छा 11 लिखना चाहता था, पहले उसने 1 लिखा था। नहीं स्वमरूप वो भी सही नहीं है। चलो देखो मैं तुम लोग के स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। एक मेथड तो बड़ा आसान सा है, मैं सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर करके देखूं, है ना। सो सपोज कुछ भी कॉम्बिनेशन में ले लेता हूँ। यहाँ पाई बॉन्ड का ये पाई बॉन्ड है एंड ये पाई बॉन्ड है। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर पॉसिबल। यस सर। अच्छा एक बार ऐसे चलाना स्टार्ट कर देते हैं। चलो इसको, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो एक बार तुम, एक मेथड तो बड़ा आसान है कि मैं सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे ड्रॉ कर करके देख लेते हैं। डू यू थिंक ये मेरे पास हो जाता CH2 should have positive charge on this carbon, double bond and double bond है ना। ये पाई बॉन्ड फिर यहाँ शिफ्ट हो सकता था and it's another structure possible, maybe let's say it is CH2 and positive charge on this carbon. ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, है ना। ऐसा डू थिंक अभी जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेफ्ट में भी जा सकता था और राइट में भी जा सकता है। Yes. हाँ सर। चलो अभी मैं इसको एक कलर से इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये वाला बॉन्ड मैं यहाँ लेके आ गया। सो इट्स अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल, मे बी and positive charge and this, it's another structure possible, maybe। शायद तुम लोग को हर बार देखो ड्रॉ करके देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बट एक बार ड्रॉ कर लो। ये पाई बॉन्ड यहाँ आया, ये पाई बॉन्ड यहाँ, ये पाई बॉन्ड यहाँ एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन is another resonating structure, maybe। let's say मैं यहाँ एरो के डायरेक्शन में बना देता हूँ जिससे थोड़ा आइडिया समझ में आए कि कौन सा पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है। so this pi bond gets shift here. In this case let's say this pi bond is going to be shift here, alternate wala, and it is CH2. This carbon should have positive charge and pi bond and pi bond, pi bond and pi bond here. One more structure can be possible. Let's say this bond will shift here and it's another resonating structure, should be, you know, it is double bond and double bond, double bond. It will be CH2 positive, double bond and double bond. तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स तो ऐसे बन सकते हैं इसमें ना। अब अगर मैं उसको राइट में शिफ्ट कराने की कोशिश करता, मीन्स अगर मैं ये वाले पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दूं, सो डू यू थिंक मेरे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ बन सकते थे, इट शुड बी let's say double bond and double bond here, double bond and double bond here, and it should be let's say CH2 and plus, and one more structure. If pi bond gets shifted here, so it's another structure, should be let's say pi bond and pi bond, pi bond and pi bond here, and it is CH2 plus. सब मिला के कितना हो गया ये? 8 स्ट्रक्चर्स। 8 हुआ है बस अभी तक, या 9 हुआ है? 9 हुआ है। 9 हो गया। 9 हो गया, तो टोटल यहाँ 9 है।
एक बार ये वाला मेथड लिख लो, फिर मैं और 2 मेथड बताता हूँ जल्दी से कैसे काउंट कर सकते थे ना। जल्दी से लिखो ये। हाँ सर, ये बहुत टाइम लगेगा ऐसे। हाँ सर, ऐसे टाइम नहीं लगा, जल्दी लिखो। नहीं सर, हम बोले थे कि काउंट करने में टाइम लगेगा। Done, sir. हाँ, ये लिखा बेटा सर। हाँ सर। Yeah. अच्छा, Yes. सर 2 मिनट और सर, 2 मिनट और। बेटा ऐसा हुआ है कि नहीं? हाँ सर। ये देखो मेथड 2, तुम लोग कुछ ऐसा भी काउंट कर सकते थे इसको।
मेथड 2 है, उसको ऐसा भी काउंट कर सकते हो। क्या है यहाँ? डू यू थिंक अगर मैं इस CH2 के इसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रखूं तो टोटल मेरे पास इसके लिए 4 बन सकते थे कि नहीं, सिर्फ नेफ्थालीन के पाई बॉन्ड इधर उधर होने से? यस जैसा ये 4 कौन कौन से हो गए, एक ये, एक ये, एक ये, और कौन सा होगा ये 4? जहां मैं अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज उसी कार्बन पे रखूं तो 4 बन पा रहे थे कि नहीं बन पा रहे थे? 3 ही दिख रहे हैं इसमें। अच्छा, नेफ्थालीन के होते ही 3 थे ना, हाँ सर, इसलिए 3 दिखाई दे रहे हैं ना। नेफ्थालीन के 3 था ना, फिनेंथ्रीन के लिए 4 आया था, है ना? हाँ सर। सिर्फ इसके लिए 3 बन गया, देखो, है ना। अब और अगर मैं समझने की कोशिश करें कि भाई इसको मैं एज इट इज रखता हूं और यहां लेट्स से मेरे पास सपोज अगर CH2 बन गया तो या तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, नहीं, या मेरे पास देखो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, ऑल्टरनेट कार्बन पे चलेगा ना, लेफ्ट पे राइट पे। यस यस। अच्छा, अगर ऊपर चला गया ये यहां, मतलब अगर मेरे पास डबल बॉन्ड इधर आया तो ये तो बचेगा नहीं बेंजीन। इधर में डू यू थिंक आइसोलेटेड बेंजीन बच रहा है ऐसा मस्त? बट आइसोलेटेड ऐसा बेंजीन बचेगा कि नहीं बचेगा उधर? हाँ सर, बचेगा। अगर आइसोलेटेड बेंजीन बचेगा तो डू यू थिंक बेंजीन के कॉरेस्पॉन्डिंग ही 2 हो जाते हैं? हाँ सर। अच्छा, अब ये देखो बेंजाइल कार्बोकेटायन है कि नहीं है? बेंजाइल बेंजाइलिक कार्बन पे है कि नहीं है? हाँ सर। तो मैं इसके चाहता तो मैं ऐसा लिख सकता था कि भाई इसी के लिए 5 बन जाएंगे। बेंजाइलिक कार्बन है ना, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन के 5 बन रहे थे। यस यस हाँ सर। और मेरे पास एक देखो ऐसा और बन जाना था जहां कोई भी रिंग बेंजीन बचेगा नहीं। वो कब नहीं बचेगा कोई भी रिंग बेंजीन? देखो, अगर मेरे पास यहां डबल बॉन्ड आ गया था, यहां डबल बॉन्ड आ गया था, और मेरे पास डबल बॉन्ड यहां आ गया था, यहां, डू यू थिंक अभी कोई भी रिंग बेंजीन नहीं है? नहीं यार। हाँ कोई सर भी रिंग बेंजीन नहीं है, एक ऐसा बन रहा था, है ना। तो डू यू थिंक यार टोटल ऐसे 9 बन जाते? यस सर। चलो एक और होमवर्क तुम लोगों के लिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां चला जाए, समझा? यस सर। चलो इसके लिए करना है तुम लोगों को, है ना, समझ लिया है? तो तुम लोगों के पास 3 होमवर्क हो गए हैं, है ना। हाँ सर। तो ये 9 कर लिया था ना इससे पहले वाले का? यस, इससे पहले वाले का 9 कर लिया है तुम लोगों ने? हाँ सर, हो गया। ये लिखे भी हो गया है? यस सर। यस सर।